मस्त रहो बस। Beautiful, beautiful, beautiful. Yeah. आपको देखकर बहुत अच्छा लगा सर, स्मार्ट लग रहे हैं आप। Thank you. It comes from Home inside. isolation. Home isolation. को लेकर तो मैं, Hi अच्छा Rakesh. राकेश जी आ गए क्या? क्या बात है। Yeah, sir. राकेश, होम आइसोलेशन नहीं, हम तो हर दिन ऑफिस जा रहे हैं। दिल्ली दिल्ली तो अग्नि पर्वत है, पर फिर भी हम ऑफिस जा रहे हैं। तो आज बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्धा ने छुट्टी दिया है। Ah, Hello everyone. Good afternoon. Namaste from Sikkim. गुड आफ्टरनून कोइराला जी। Good afternoon, sir. आपको देख के हमें ठंड लग रहा है। हाँ, सिक्किम तो अभी देखिए जैकेट लगा रहा हूँ अभी। सिक्किम इतना ठंडा है। नमस्कार राधिका मैम। Namaste. How are you all? ऑल गुड मैम, ब्लेसिंग्स फ्रॉम अबव। Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हैं? बस सर कोविड हो चुका है सर, बुरी हालत में है। पूरी फैमिली को कोविड हो गया मेरी तो, और मैं बहुत टफ टाइम निकाला है हम लोगों ने। Pray for them. Be Thank strong. you, Pray sir. for them. Be strong. Welcome, Suresh sir. Welcome. Shubhendu, you may be wondering, these guys look like friends, but you said they are all awardee teachers. In fact, this is such a beautiful fraternity. We're all friends. They're all awardee teachers. Of course, we from the government of India, we from the administration side, we are just facilitators, but we were also allowed to be their friends. So you must be wondering, Shubhendu. Good afternoon, Bhaskar sir. Aurora here. How are you doing? All good, ma'am. Good afternoon. All good. Blessings. Everything fine. Everything going yes, good. Yes, sir. Everything is fine. Thank you so very much. Hope all are fine in your family. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon, Blessings. sir. Very Good afternoon, different, friends. Good afternoon, Hannah, ma'am. Yeah. Good afternoon, sir. Good afternoon. Namaskara. Namaskara, Suresh sir. How are you? We are all fine, sir. Hope you are also doing good. You are living in such a beautiful place. Uttara Kannada. Uttara Kannada. You are in Uttara Kannada? Dakshina Kannada, Udupi. 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 Dakshina Kannada. Okay. Yes. Such a beautiful place. ऑक्सीजन सिलेंडर जैसा लग रहा है सर, ऐसा प्लेस है फुल। Exactly. वहाँ कोइराला सर भी ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर बैठे हैं और सुरेश सर भी ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर बैठे हैं। उनके चारों ओर ऑक्सीजन सिलेंडर है। Really. Thank you, sir. Yeah. So in a moment we will start. Please call your friends to join. Okay. As many friends as you have, you can ask them to join in. Then we will start. And Yeah. I'll give the intro. I'll formally welcome Shubhendu, guest of the day. Sure, sir. Yeah, I request now. I request all our August awardees to please keep their VC on mute mode, their PCs and mobiles on mute mode, so that we can formally start the session. Yeah, Sat Sri Akal, a very good afternoon to you all. Subha Parahnam. And what an auspicious day today is. This is Vesak, this is Buddha Purnima. What a wonderful day to learn about taking care of our own mother nature, earth, through trees. Vriksho rakshati rakshitaha, as they say. Those who take care of trees will be taken care of. Those who protect trees will be protected. And towards that end, towards that objective of taking good care of the earth so that we can take care of ourselves, we have invited a very unique personality, very young next generation entrepreneur who had chucked away his so-called safe job and then went into his passion, that is planting trees, growing trees, helping trees to grow.
so that nature is protected. So I'll just give a few words of introduction about Shubhendu. I request all of you to greet him if you can. Shubhendu is here. He's a youngster, but being a teacher, you can greet him. You can, being teachers, you can. Welcome, Shubhendu ji. Hello, welcome. Great pleasure to listen to you. Welcome, sir. Welcome, sir. Welcome, sir. Good afternoon, Green Man. Good afternoon, Good Green Man. afternoon and welcome, sir, from Delhi. That's great. Namaste, That's sir. Welcome, sir, from Meghalaya. Shubhendu, you will find people from all over the country, from Meghalaya to Delhi, to Sikkim, to Kerala, to Tamil Nadu, to Kashmir, to Ladakh. Welcome, Sahani ji. Welcome, Shubhendu from Dehradun. Thank you so much. Welcome from Pondicherry, sir. Welcome. Thank you so much. Thank you so much. Welcome from London, eagerly waiting for your session, sir. Andhra Pradesh. Vidhu Vinod Nair from Kerala. Yeah. Let's formally start this. Okay, what an auspicious day, Buddha Purnima, and we have Shubhendu here with us to tell us about growing trees. It's my privilege to introduce our speaker of the day, Mr. Shubhendu Sharma, the founder director of Afforest. What a beautiful name, AFFORESTT. The journey of Afforest started way back in 2008 when Shubhendu, as an industrial engineer working at Toyota Bangalore, attended a lecture by none other than Akira Miyawaki, the legendary Japanese scientist who had developed and improvised this method of Miyawaki forestry. You're very lucky, Shubhendu. You met Miyawaki. Yeah, and then through you, we're meeting Miyawaki. Dr. Akira Miyawaki had arrived to plant a forest at the factory of Toyota in Bangalore using a methodology he had developed to make a forest grow 10 times faster than the normal. Fascinated by his lecture, he had volunteered. Our Shubhendu volunteered with Dr. Akira to work on a first forest creation project in India. After researching and documenting the Miyawaki method, Shubhendu developed a standard operating procedure. If you go through his website, you will find out. And I've been a fan of yours, Shubhendu. I must tell you this. I've gone through your website. I've seen the methods, and then you've got some software also. You know how you people monitor what you plant and all that. He has developed all these SOPs on how to create a forest using the Miyawaki method. Independently, he created his first forest in Uttarakhand. See, for all the places, Uttarakhand as well. And Afforest was launched in 2011. He was awarded the INK Fellowship and Ashoka Fellowship, where Afforest was recognized as a social enterprise. It is a social enterprise with high ethical standards and moral fortitude. He was also awarded the TED Fellowship. You all want to give TED Talks, no? Learn from Shubhendu. In fact, I have first seen Shubhendu in a TED Talk. And he spoke at the TED conference in Canada, which received international attention. He received Namma Bengaluru Award in 2015 for his outstanding contribution to Bengaluru city. You can see these forests, you can see the pictures, so beautiful. You know, dil khush ho jata hai. Post that, he worked on various large-scale national and international projects. And इन्होंने इसके बाद कई सारे large-scale national, international जगहों में काम किए थे. United States of America, Netherlands, Singapore, Japan, Latin America, the Arab world. We're truly blessed that he is here today to share with us the Miyawaki method of forest on this Buddha Purnima day. He was also featured by Discovery Channel as a planet healer. सुनिए, इन्हें Discovery Channel में as a planet healer. You know, you remember I used to tell you earlier in some of our webinars, the planet Earth needs more healers, lovers of all kind, more peace givers, not achievers, conquerors, warriors. No, we need more healers. And here we have in Shubhendu
a healer through his trees and the method of growing trees faster. Shubhendu has also successfully worked on projects in extremely difficult climatic conditions, ranging from Iran, degraded soils of Rajasthan, and in a high altitude cold desert of Leh Ladakh as well. Imagine, see the range. ईरान का जमीनें, राजस्थान के रेगिस्तानी जमीनें और लेह लद्दाख के ठंडा इलाका वाला जमीनें. Maruvan, one of their most ambitious projects, started in 2018. It combines principles of seed bank creation, nursery, forest, water conservation, and sustainable habitat. We have almost 150 of you national awardee teachers who have been selected out of 35 lakh students of this country, 35 lakh teachers of this country over a period of 3 years. You people are the healers of this nation, because each teacher can create hundreds of more healers. So this is the precise idea why we have invited Shubhendu on this Buddha Purnima day, which is a day of healing, so that through him we all imbibe a little bit of healing and effervescently spread the joy of healing, and through your students, so that it multiplies. We take care of our earth through planting more trees. Without any further words of mine, I would request now Shubhendu to please give us a little more thoughts and methods and ways of taking care of the earth, healing ourselves to heal the earth through planting more and more trees. Shubhendu, thank you so much for joining us. Please, all yours. Our teachers are all ears. Please. Thank you, Shubhendu. Thank you so much, Mr. Bhaskar, for that introduction. सभी को बहुत बहुत नमस्कार मेरा, और सही में मेरे लिए भी बहुत सम्मान की बात है कि आप जैसे शिक्षकों के साथ, गुरुजनों के साथ अपना काम शेयर करने का एक मौका जो मुझे मिला है, इस 1 घंटे का मैं पूरा उपयोग कर सकूं. कोशिश करूंगा कि जितना हम लोगों ने सीखा है पिछले 10 सालों में, उसको एक 30-40 मिनट के प्रेजेंटेशन में दिखा सकूं. आपके अगर कुछ भी सवाल हो मेरे प्रेजेंटेशन के दौरान भी, तो भी आप बीच में उसको या तो चैट में लिख दीजिएगा, या फिर अगर कुछ बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जो परेशान कर रहा हो आपको, तो मुझे बीच में रोक के पूछने में संकोच मत कीजिएगा. So thank you very much, Mr. Bhaskar, for the introduction, and I'm gonna share a presentation which is kind of a summary of what we have done in last 10 years. And it's really a pleasure and honor to be with so many teachers and share about our journey and our work. They are the creme de la creme of the nation, not just the teachers. They are August awardee teachers awarded by the president of the nation. Like, yes, they are top of the notch. Bhaskar sir, you are too kind, sir. You're always so kind. Thank you. It's an absolute honor. That's very true. Okay, so hope you can see my screen. Are you able to see my screen now? Yeah. Yes, sir. Yes, okay. Sir. It's visible. Yes. There's a small problem, which is that once I have put my computer in presentation mode, I will not be able to see you. Okay. So just in case, if you have any question, please feel free to ask me during the presentation. Is my audio okay? Mr. Bhaskar, if you can tell me. Is the audio? Yes, sir. Clear? Yes, sir. Audible. Okay, sir. Okay. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. मेरा नाम शुभेंदु है, मैं बैंगलोर में रहता हूँ, और मेरी कंपनी का नाम अफॉरेस्ट है. और ये जो 2 छोटे से पेड़ आप इसमें देख रहे हैं, ये जापानीज कैरेक्टर है, कांजी कैरेक्टर है, जिसको मोरी बोलते हैं, मतलब जंगल. तो इसको अगर कोई जापानी व्यक्ति भी पढ़ेगा तो उसको ऐसा लगेगा जैसे वो जंगल के बारे में कुछ बात हो रही है. So we borrowed these 2 characters from kanji script,
which is used in Japanese, and made this logo, which is actually a tribute to our guru, our teacher. His name is Dr. Akira Miyawaki. So just like you, he is also a teacher. We call him Miyawaki Sensei. Sensei means teacher in Japanese. तो Miyawaki Sensei योकोहामा नेशनल यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं. He has become a professor emeritus, तो अब वो हमेशा ही योकोहामा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहेंगे. He developed a methodology which makes forest grow really fast, or we can say that he developed this methodology which can bring back a lost natural forest which would have grown at that particular place a few thousand years ago. मतलब मानवों के जंगलों के साथ छेड़छाड़ करने से पहले जो वनस्पति उस जगह पर पाई जाती थी उसको वापस लाने का एक ऐसा तरीका उन्होंने इजाद किया जिससे एक छोटे से समय में हम एक ऐसा जंगल वापस लेके आ सकते हैं जो कई हजार साल पहले वहां पर कभी खड़ा रहा होगा. So Dr. Akira Miyawaki came to India in 2009 for the first time, and 2008, December 2008. And I happened to meet him in a lecture like this. तो मैं टोयोटा में काम करता था, वहाँ पर डॉक्टर अकीरा मियावाकी का एक लेक्चर संयोजित किया गया था. टोयोटा के जो चेयरमैन थे उस वक्त, वो चाहते थे कि हमारी फैक्ट्री में जंगल लगे और इसलिए उन्होंने डॉक्टर अकीरा मियावाकी को टोयोटा में बुलाया था. तो जब वो आए तो उन्होंने एक लेक्चर दिया, वहां पर मैंने पहली बार मियावाकी मेथड देखा और उसके बाद मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ गया. तो जो आप तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उनका पहला फॉरेस्ट था इंडिया के अंदर. उस जंगल से सीख कर I learned from that first forest which Dr. Akira Miyawaki planted in India, and learning from that project I planted a forest in backyard of my own house. And this is my house in Uttarakhand. Though I live in Bangalore, but my hometown is in Uttarakhand. And this is where I experimented about the methodology that I had documented while I was working at Toyota. तो जितना भी documentation जो इस पूरे काम को करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो सारे चरण मैंने एक उसका एक तरीका बनाया था. और उस तरीके को चेक करने के लिए, ये ट्राई करने के लिए कि भाई ये तरीका चलेगा या नहीं, मैं उत्तराखंड में अपने घर पे जाकर वहां पर मैंने सबसे पहला अपना जंगल लगाया. और इसको आप काफी सफल प्रोजेक्ट बोल सकते हैं कि 3 साल बाद ये कुछ ऐसा दिखने लगा. सो विद इन 3 years द फॉरेस्ट स्टार्टेड टू लुक समथिंग लाइक दिस, एंड you can call it a successful project, but to be honest it was not that successful either, because if you look at the tallest tree, this tree, maybe some of us can recognize it as well. कोई बता सकता है कौन सा पेड़ है? Can someone tell which species of tree it is? Looks like Gulmohar to me. I don't know. Is yes ma'am, you are right. It's a Gulmohar. जी ये गुलमोहर ही है. तो सबसे बड़ी गलती हमने जंगल लगाने में यही करी थी कि हमने गुलमोहर का पेड़ लगा दिया था. ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये देसी पौधा है क्योंकि इसका नाम देसी लगता है, सुन के ऐसे लगता है as if it is a native tree because it sounds, the name sounds so native, so Indian, but it is not. And the issue which happened because of planting of this wrong species was that the number of trees around it, native trees, did not survive. तो काफी सारे पेड़ मर गए इसके चारों ओर जो लगे हुए थे. डॉक्टर अकीरा मियावाकी कहते हैं कि जंगल वृक्षों से भरी एक ऐसी जगह है जिसमें आप चलकर जा भी नहीं सकते. A place so dense with natural vegetation that you can't even walk into it, irrespective of its size. So it can spread over acres and acres of area. बहुत बड़े एरिया में भी लगे हो सकते हैं या फिर एक छोटी सी जगह में भी आ सकते हैं. जैसे ये किसी के घर में जो लॉन होता है उसकी छोटी सी जगह में हमने जंगल लगा दिया. So irrespective of its size, a place which is self-sustaining, full of native vegetation, which does not need any external input for survival. उसको बाहर से किसी भी रख रखाव देने की जरूरत नहीं है और वो अपने आप अपना ख्याल खुद रख सकता है. ऐसी जगह को हम जंगल कहते हैं. तो इस प्रणाली का इस्तेमाल करके हम भारत में, भारत के बाहर, दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर
इस तरीके के जंगल हम लोग लगा चुके हैं। किन जगहों पर हम इन जंगलों को लगा सकते हैं? उन जगहों पर जहां पर पहले किसी जमाने में जंगल रहा हो। So we can bring back a lost natural forest. We cannot convert any place into a natural forest, but we can bring it back. Now there are many types of plantation that happens around us. आजकल बहुत कई तरीके के वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक दिन में 5 करोड़ पेड़ लगा दिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने एक दिन में 6 करोड़ पेड़ लगा दिए। पर हमको बारीकी से देखना चाहिए कि हम सही तरीके से पेड़ लगा रहे हैं या नहीं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात इन जंगलों को जो अलग करती है किसी भी और वृक्षारोपण के कार्यक्रम से, वो है कि हम प्लांटेशन नहीं करते। जैसे कहते हैं यूकेलिप्टस का प्लांटेशन कर दिया या पॉपुलर के पेड़ लगा दिए। So there are many types of plantation. Nowadays people are doing moringa plantation, people do eucalyptus plantation. If you compare these monoculture plantations, mono मतलब एक, तो एक ही प्रकार का अगर कल्चर लगा हुआ है sir. जी सॉरी So I'll just continue. अगर एक ही प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं तो उसको हम मोनोकल्चर बोलते हैं। और ये मोनोकल्चर जो है, ये मेरी आवाज आ रही है ना सबको? आई होप Yes, so we can hear you. Sound is something breaking, sir. Sound एकदम बढ़िया आ रहा है। अच्छा, मेरे ख्याल शायद आपके उसमें सिग्नल का इशू हो रहा होगा कुछ। फिर भी आप मुझे बता दीजिएगा अगर सही से नहीं आए तो। Just let me know, sir, if it is not coming. Your audio is clear. Okay. Audio is clear. No, it's very clear. Continue, please. Okay. So the prime difference between a monoculture and a forest is this. A multi-layer forest fills up the empty vertical space with green surface area. पत्तियों से हम जमीन के ऊपर की सारी खाली जगह भर देते हैं और उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, जो प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं जिसको, जहां पत्तियां सूर्य का प्रकाश ग्रहण करके उससे ग्लूकोज बनाती हैं, खाना बनाती हैं, ये जो प्रक्रिया ये भी फिर 30 गुना ज्यादा होगी, क्योंकि 30 गुना ज्यादा हमारे पास पत्तियां हैं, हरा क्षेत्रफल है। So green surface area, leaf surface area is 30 times more. So we can photosynthesize 30 times better. Means we can produce 30 times more glucose or sugars, which means the forest grows a lot better and faster. And also it produces a lot of biomass which will be consumed by all the other living organisms. तो जितने भी फल उगेंगे, जो जड़ें बनेंगी, जो पत्तियां गिरती हैं, ये सब छोटे छोटे जीव जंतुओं का खाना बन जाएगा। तो क्योंकि 30 गुना ज्यादा प्रकाश सोख पा रहे हैं, इसलिए खाना भी कई ज्यादा गुना बनेगा, तो पौधे बढ़ेंगे भी तेजी से। और क्योंकि बहुत सारा खाना बन रहा है तो बहुत सारे जीव जंतु इन जंगलों में आके रहने भी लगेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो 100 टाइम्स, एटलीस्ट 100 टाइम्स मोर। जो जैव विविधता है इन जंगलों की, जहां पे कभी तो आप देखते हैं कि यूकेलिप्टस का पेड़ लगे हुए हैं तो बस एक ही पौधा लगा हुआ है, एक ही प्रकार के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ना उसमें छोटे छोटे कोई जीव जंतु है, ना चिड़ियों का घोंसला है, ना ही कोई आपको उसमें जीवन नजर आता है। और ये जंगल जीवन से भरे रहते हैं। मेरे खुद के घर में एक जंगल है, वहां पर एक दिन के अंदर मैं 4 या 5 प्रजाति की चिड़िया देख सकता हूँ। और उनके खाने के लिए भी सारा प्रबंध है जंगल में, उनके घोंसला बनाने के लिए भी प्रबंध है। तो इस तरह के जंगलों को वापस लाने से आप उन खोई हुई प्रजातियों को भी वापस ला सकते हैं, चाहे वो चिड़ियों की प्रजातियां हो, छोटे जीव जंतुओं की हो, जो कभी उस इलाके में पाए जाते रहे होंगे। एंड द प्रोसेस टू मेक दीज फॉरेस्ट इज ऑल्सो 100% नेचुरल। वी डू नॉट यूज एनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इन मेकिंग ऑफ दिस फॉरेस्ट। तो कोई यूरिया नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई पेस्ट रेपेलेंट भी नहीं इस्तेमाल करते। और अगर आप उस बदलाव की बात करें जो इन जंगलों की वजह से आता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो तापमान है उस जगह का, द हीट दैट अदरवाइज is generated at those places. In this example, you can see 14 degrees Celsius difference in temperature outside the forest versus inside the forest.
and this is done by a 1.5-year-old forest in Maharashtra. तो 1-1.5 साल का जंगल 14 डिग्री तापमान गिरा सकता है। महाराष्ट्र जैसी जगह की मैं बात कर रहा हूँ जहां पर वैसे ही इतनी गर्मी पड़ती है, और जो नमी है मिट्टी की वो 43% ज्यादा हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अब जंगल सूर्य की रोशनी जमीन पर नहीं पड़ने देता, तो जो नमी है मिट्टी की वो वापस हवा में वाष्प बन के उड़ती नहीं है। So the moisture is also contained in the forest because the forest blocks all the sunlight, and you can see a 43% rise in humidity. So different types of bees, butterflies, और वो छोटे छोटे जीव जंतु जो मुझे तो सारे लोग ये बोलते हैं ये हमने बचपन में देखा है, ये कीड़ा शायद आप लोगों ने भी बचपन में देखा होगा, आजकल नहीं नजर आता, शहरों में तो नहीं आता, आप हो सकता है आपके इलाकों में आज भी मिल जाता हो, पर मैंने बचपन के बाद ये कीड़ा पहली बार अपने लगाए हुए जंगल में ही फिर देखने को मिला, उसके अलावा नहीं दिखते। पहले बरसात में सब जगह ये कीड़े दिखते थे। तो ये सारे जीव जंतु वापस आने लगते हैं। और महाराष्ट्र में एक जंगल हमारा ताडोबा नेशनल पार्क के पास है, वहां पे तो हमें इस तरह के चिन्ह अब दिखने लगे हैं। तो जब भी जंगल में तूफान आता है, जो बाघ है वो हमारे जंगल में आके रुक जाता है। अब वो ऐसा क्यों होता है, इसके कारण में जाएंगे तो शायद और बहुत सारी बातें पता चले, पर एक ये बड़ी बात है कि मानव निर्मित जंगल में जंगली जानवर आने लगे हैं जो वैसे मानव पे कभी विश्वास नहीं करते। तो ये मुझे लगता है जंगलों का एक बड़ा महत्वपूर्ण फायदा है, और ये जंगल अच्छे से काम कर रहे हैं, इसका एक बड़ा सबूत है कि जंगली जानवर इनमें आने लगे हैं सहारा लेने के लिए। तो अब हम वापस चलते हैं अपने स्कूल की किताबों के अंदर। इफ यू लुक एट एनी स्कूल टेक्स्ट बुक ऑफ मे बी क्लास 8th और क्लास 7th student, probably you will see these type of successions, natural successions, how forests are made naturally. They are made naturally by succession. तो ऐसा तो नहीं है कि हम जब जंगलों की बात करें हम कहते हैं आज हम जंगल लगा रहे हैं, पर प्रकृति में तो ये जंगल अपने आप ही उगते चले आए हैं, किसी ने नहीं लगाए। तो ये कैसे लगे, इसको थोड़ा समझते हैं। जंगल सक्सेशन की वजह से लगता है, पहले घास उगती है, फिर कुछ और प्रजातियां उगनी शुरू होती हैं, और धीरे धीरे फिर सारी वनस्पति एक इस तरीके से उगने लगती हैं कि वो एक जंगल का निर्माण करती हैं। इसको क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। क्लाइमैक्स कम्युनिटी के पेड़ों में और बाकी पेड़ों में थोड़ा सा फर्क होता है। वो फर्क ये है कि जो इंटरमीडिएट, जो पाइनियर स्पीशीज हैं, जो सबसे पहले किसी जगह पर पेड़ उगते हैं, उनकी लकड़ी कच्ची होती है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रीज, pioneer species and climax forest species. Pioneer species are softwood, fast growing species like Delbergia sisu, जिसको शीशम भी बोलते हैं, हालांकि वो शीशम होता नहीं है, पर या फिर मोरिंगा जो कि ड्रमस्टिक का जो हमारा पेड़ होता है साउथ में। तो these trees are pioneer species. They grow fast but their wood is soft. They can't make a climax forest. Climax forest species can grow under the shade of other trees. They are shade tolerant trees. So slowly they keep growing, their wood is very robust, and they will eventually make a forest which is going to regenerate itself again and again. This is the final stage of succession. And the beauty of this stage is, climax forest की ये खास बात है कि अगर किसी कारणवश ये जंगल खत्म भी हो जाए, कट भी जाए, तो भी धरती के अंदर एक ऐसी शक्ति मौजूद है कि वो वापस इन जंगलों को खड़ा कर सकती है। इसमें 200-250 साल लग जाएंगे, पर ऐसा होता है। आप कोई खाली प्लॉट छोड़ दें तो आप देखेंगे पहले उसमें घास उग रही है, फिर और वनस्पति उग रही है, और फिर एक बड़े बड़े पेड़ भी उगने लगे। So the natural process of succession is, even if the forests are destroyed, the nature has the potential to grow them back into that stage in which they would have removed. Climax community वापस आ जाती है। तो किस तरीके से ये होता है? Grasses, shrubs, pioneer species, or finally climax forest species. So we are only focusing on climax forest right now. We plant climax forest on barren land. बंजर भूमि पर देसी प्राकृतिक जंगल लगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। कैसे करते हैं? आप किसी जंगल में जाएं, वहां से बीज इकट्ठे करें, उनके पौधे तैयार करें, और अच्छे से तैयार की हुई मिट्टी में उन पौधों को लगा दें। ये सुनने में बहुत साधारण सी बात लगती है, पर सच्चाई यही है कि
इतने आसान तरीके से आप जंगलों को लगा सकते हैं। अब इसको अगर टेक्निकल भाषा में बोलें तो वो कुछ ऐसी है कि दो succession की theories, there are two theories of succession. One is that a forest will grow naturally in 200 years. Another is, which Dr. Miyawaki talks about, that right on day one you plant a forest of shade tolerant species which make the climax forest, so that in 20 to 25 years you end up at the same result. तो आप पहले ही उन पौधों को लगा दें जो 200 साल बाद उगने वाले हैं, तो 20 से 25 साल में आपको एक ऐसा जंगल देखने को मिलेगा जो 200 साल बाद प्रकृति ने स्वतः उगाया होगा, और वो अच्छे से उगे। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आप बाहर से मिट्टी लाके डाल रहे हैं, आप छोटे छोटे पौधे खुद से आपने तैयार किए हैं बीजों से, उनको लगा रहे हैं, और बहुत ज्यादा घनत्व में लगा रहे हैं, एक दूसरे के पास लगा रहे हैं, जैसे किसी जंगल में सारी चीजें एक दूसरे से के आसपास उग रही होती हैं, बिल्कुल उस तरीके से। So you are planting trees, seedlings close to each other. You are preparing the soil, adding topsoil, and you are planting young seedlings of climax forest species right on day one. So in 10-15 years, or maybe 20 to 25 years, you will end up with a quasi-natural forest. इसको हम प्राकृतिक जंगल तो नहीं बोल सकते, पर प्राकृतिक जैसा एक जंगल, क्वाज़ाई नेचुरल फॉरेस्ट हम इसको कह सकते हैं, कि प्राकृतिक जंगल के जैसा ही है। और तरीका क्या है, जैसे हम आपको बता रहे थे कि पहले जंगल में जाएं, वहां से बीज इकट्ठा करें, पर अगर जंगल है ही नहीं तो ये जैसे फोटो आप राजस्थान की देख रहे हैं जो जिसमें बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है। सो इन प्लेसेस वेयर देयर आर नो फॉरेस्ट रिमेनिंग, you try to find whatever native species you can find and collect seeds from them, grow seedlings. Using these seedlings, you will eventually plant your forest. How do we plant this forest? To make a forest, you have to make the foundation of the forest. Means the soil in which the forest is going to grow, वो मिट्टी जिसमें जंगल को उगना है, आप उसको तैयार करें। और उसको तैयार करने के लिए आपको क्या करना होगा? जंगल की मिट्टी में नमी रहती है, उसमें वो इतनी हल्की और इतनी मुलायम होती है, इतनी खोखली जैसी होती है कि उसमें जड़ें आसानी से घुस सकती हैं। आप उसे हाथ से खोद सकते हैं, शहर की मिट्टी को नहीं खोद सकते। तो उसमें हम इस तरीके की चीजें मिलाते हैं कि वो पानी को पकड़ के रख सके, उसमें जड़ें आसानी से घुस सके, पानी डालने तो पानी उसके अंदर समा सके, और उसमें बहुत सारी वे चीजें हों जिनका इस्तेमाल करके पौधे उग सकें। So we add nutrition, materials that are rich in nutrition, materials that are rich in perforation capacity. They improve perforation capacity, they improve water retention capacity. And also we artificially introduce soil microbiology back into the soil. तो अगर आप जंगल की मिट्टी का एक नमूना लें, एक सैंपल लें, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखें, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। उसमें आपको छोटे छोटे जीव जंतु दिखाई देंगे। पर अगर आप बंजर भूमि को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। तो ये बात साफ है कि जंगल की मिट्टी में जो जान है, जो उसकी उपजाऊ होने का कारण है, वो है उसमें रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु। तो हम उनको वापस लेके आते हैं। सो वी ब्रिंग बैक द सॉइल माइक्रोबायोलॉजी टू ब्रिंग बैक द लाइफ इन द सॉइल। वी डू इट इन द फॉर्म ऑफ कंपोस्ट, जीवामृत नाम की एक चीज बनाते हैं। वो कैसे करते हैं उसकी आगे की काफी लंबी कहानी है, पर बात सारी यही है कि जब तक मिट्टी में जान नहीं होगी छोटे छोटे जीव जंतुओं के द्वारा जो आती है, तब तक जंगल नहीं बन पाएगा। बिकॉज फॉरेस्ट डज नॉट मीन ओनली ट्रीज और वेजिटेशन, इट मीन्स एन एंटायर इकोसिस्टम। जंगल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पेड़ पौधे लगा दिए, घास लगा दिया, जंगल बन गया। उसका मतलब है एक पूरा का पूरा तंत्र जिसमें छोटे छोटे जीव जंतु भी हैं, जिसमें पेड़ पौधे भी हैं, जिसमें चिड़िया भी हैं, जिसमें बाघ भी है, सारी चीजें हैं। अब पेड़ पौधे चल फिर नहीं सकते इसलिए हम उन्हें लगा देते हैं, बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं। सो प्लांट्स कांट मूव, सो वी प्लांट देम। रेस्ट ऑल ऑफ द थिंग्स दे कम themselves, but microbes in the soil, they can't move very fast, so we have to artificially introduce them. उसके बाद हम क्या करते हैं?
हम पानी देकर मिट्टी की नमी बरकरार रखते हैं, कभी कम नहीं होने देते. So we maintain the moisture by continuously watering our forest. In cold places, there is one more activity. We cover the soil of our forest using something called mulch. What this mulch does, it prevents the sunlight from reaching the ground. ये सूर्य की रोशनी को पूरी तरह से रोक लेती है, तो जो छोटे जीव जंतु हैं वो इसके नीचे पड़ते रहते हैं, उनकी संख्या बढ़ती रहती है. अगर सूरज की रोशनी उन पे पड़ेगी तो वो मर जाएंगे. जी. एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो हम keep going. मिट्टी की नमी बरकरार रखते हैं. जब ठंड पड़ती है तो इस मल्च की वजह से वो मिट्टी में एक हवा आती जाती रहती है और एक कंबल की तरह ये मिट्टी की रक्षा करती है. उसके नीचे जो छोटे जीव जंतु हैं वो फिर भी बचे रहते हैं ठंड के दिनों में भी. So it prevents the microbes from freezing because it behaves like a blanket. And in this type of prepared soil, the roots also penetrate very well. They tightly form a mesh, tightly holding the soil. And in this type of forest, you can't even tell which root belongs to which tree. So it behaves like one single organism. तो जब हमारा जंगल बढ़ता चला जाता है, उसकी जड़ें भी एक बहुत पक्का जाल बना लेती हैं मिट्टी में, मिट्टी को अच्छे से पकड़ के रखती हैं. आप कह भी नहीं सकते कि कौन सी जड़ किस पेड़ की है. तो पूरा जंगल एक इकलौते जीव की तरह बढ़ता चला जाता है. और मिट्टी के ऊपर जो पत्तियां गिरती हैं वो गलती हैं और उनकी ही खाद बन जाती है. इन इंग्लिश वी कॉल इट ह्यूमस. सो दीज लीव्स फॉल इन लैक ऑफ सनलाइट, दे डिके इमीडिएटली and they start to make humus, which is food for the forest. So the forest does not need any external nutrition. It does not even need water from the outside because it's conserving its own water. And this is how forest becomes self-sustaining. So this is the stage when Dr. Miyawaki says no management is the best management. So Dr. Miyawaki कहते हैं कि ये इस स्तर पे आने के बाद आपको जंगल में कोई दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा, उगता चला जाएगा. तो मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूँ हमारे जंगलों के. ये बेंगलोर जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ का एयरपोर्ट है. दिस इज बैंगलोर एयरपोर्ट. दिस इज अनदर पिक्चर फ्रॉम बैंगलोर एयरपोर्ट. दिस इज अ प्रोजेक्ट इन राजस्थान. दिस इज अ प्रोजेक्ट इन ईरान. सो even in extremely difficult climate, this is how it looked like when we planted it. और 2 साल बाद, आफ्टर 2 years, it started to look something like this. तो जिन जगहों पर बिल्कुल भी बारिश, मतलब बहुत कम बारिश होती है, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आते हैं, वहाँ पर भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ इस तरीके के जंगल लगाए हैं. ये बेंगलोर है, किसी का घर है. कराची पाकिस्तान है. This is a factory in Maharashtra, L&T factory. This is another factory. This is in Chennai. This is Faridabad. This is another project in Chennai, Bangalore, Gujarat, उमरगांव गुजरात. ये हैदराबाद में है. और बहुत सारे लोगों ने, मतलब हमने जो पौधे लगाए, जो जंगल लगाए हैं वो तो लगाए ही हैं, पर उसके अलावा भी काफ़ी सारे लोगों ने इस काम को सीख कर, हम लोग की ये जो मेथडोलॉजी है ये पूरी ओपन सोर्स है. मतलब सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन 4 भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, 5 में, जापानीज, बंगाली में भी है, 6 भाषाओं में है. सबके लिए अब हम लोगों ने खोल रखा है, तो उसको पढ़ के काफ़ी लोगों ने खुद से जंगल लगाए हैं. So number of people have planted their own forest in different parts of the world and in country as well, using this methodology. अब मैं एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप ताजमहल को देखें तो इसके सामने एक लॉन लगा हुआ है. अच्छा, इसको हम अच्छा ही समझते हैं, ये जो उद्यान है, जो बाग है. If you look at the landscaping in front of Taj Mahal, it looks good from our perspective of how we perceive beauty. But if you look at the oldest pictures of Taj Mahal, this is how it used to look like. So the garden in front of Taj Mahal was not
anywhere close to the garden that it is today. In fact, if you look at some of the oldest pictures, it used to look something like this. मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारा जो देसी तरीका था उद्यान लगाने का, बाग लगाने का, वो काफी कुछ जंगल नुमा ही था. तो हम लोग को समझना होगा कि हमारे जो देसी तरीके से करी हुई बागवानी है, हम उसी को वापस लेके आए. और हम लोगों ने पेरिस के मेयर के लिए एक स्टडी करी थी. सो वी डिड अ कंपैरेटिव स्टडी फॉर द मेयर ऑफ पेरिस. What we found that the money that they were spending in maintaining lawns in the city, in 1/5 of that cost, we could plant a forest which will become self-sustaining in just 2 years. तो उसका चौथाई से भी कम हिस्सा, 20% खर्चे में आप एक ऐसा जंगल लगा सकते हैं जिसे किसी रख रखाव की जरूरत ना हो. और अगर आप वैसे भी देखें तो ज्यादातर जगहें जहां पर शहर बसे हुए हैं वहां पर कभी जंगल हुआ करता होगा. हम ये ऐसे कह सकते हैं क्योंकि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं मानव की, वो खाना हो गया, साफ हवा, ताज़ा पानी, the basic essentials of human life, clean air, fresh water, healthy nutritious food, all of them, they come from the forest. And that's the reason why most of the cities in the world would have been a forest long time ago. इसीलिए हम नदियों के पास में अपने शहर बसाते थे. तो हम लोग की एक कोशिश हमेशा से ये रही है कि हम शहरों के बीच में इन जंगलों को लेके आए. सो दिस इज अ फॉरेस्ट इन दिल्ली नियर बारापुला. आप लोग जब अवार्ड लेने दिल्ली जाएंगे तो अगर मौका लगे तो ये हमारा जंगल जरूर देख के आइएगा. शहर के बीचों बीच में है. और शुभेंदु सर, एक विजय भास्कर सर, बिल्कुल भास्कर सर से कहिए कि एक बार फिर बुलाएं, फिर जाएंगे, एक बार लेके जाए ना. हाँ बिल्कुल. Mr. Bhaskar, this is very close to ITO, which is very central Delhi. So wherever you are in central Delhi, you won't be more than 5-6 kilometers away from this. And I'll show you some more pictures. We can even host a small gathering in this. We can host a session also where you can sit in one. We have created an amphitheater inside the forest. तो आपकी एक बहुत अच्छी ग्रुप फोटो भी वहां पे हो सकती है जंगल. शुभेंदु सर, जी जी. तो हमें एक और अवार्ड लेने जाना पड़ेगा. That's what I'm saying. विजय भास्कर sir has to organize one more award for all the awards. अच्छा, वो आपको मिल चुका है दिल्ली में ऑलरेडी? हाँ, मिल चुका है. अच्छा, ठीक है. शुभेंदु जी, आपने 2 चीजें दिखा के ना, एक तो ये कि दिल्ली में है और अवार्ड लेने आएंगे. अवार्ड का नाम आते ही फिर से सारे रिवाइव होने जा रहे हैं कि जिनको मौका मिला वो सब आना चाहेंगे. और दूसरा एयरपोर्ट दिखा दिया आपने बैंगलोर का, वो भी कोविड. नहीं, बैंगलोर का एयरपोर्ट तो खुला है, आप कभी भी आइए, मैं आपको दिखा दूंगा भाई ये वाला जंगल. ये दिल्ली की सिचुएशन अलाउ भी तो करे ना निकलने में. जी, ये बात सही है. थैंक यू. वेलकम. तो हम लोग डिजाइन करते हैं इन जंगलों को जिससे कि शहर के लोग इसका फायदा भी उठा सके. मैं आपको एक, अब अगर टाइम रहा तो एक दिल्ली का एक और प्रोजेक्ट दिखाऊंगा जिसपे काम अभी चल रहा है. तो वी मेक श्योर दैट देयर आर pathways for running, there are benches on which people can sit, there are quiet zones where people can sit and meditate, and these are the kind of forest in which you can, the basic theme was people should be able to lose themselves, to find themselves in a forest like this. तो जब हमने इसे लगाया तो ये कुछ ऐसा दिखता था और 1 साल बाद ये कुछ ऐसा दिखने लगा. अगर आप अंदर से देखें इन जंगलों को तो आप देखेंगे कि सिर्फ 1 साल में ये इतने घने हो गए हैं कि आप आसानी से इसमें खो सकते हैं. और आप अगर देखेंगे इनके मैम के हाथ में जो चीज है वो एक मधुमक्खी का छत्ता है. शी इज होल्डिंग अ बी हाइव इन हर हैंड्स व्हिच शी पिक्ड अप फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर. So you can imagine within a year there were so many bees inside the forest already. So this is what we are doing, and this is what we target to do anywhere and everywhere. Thank you so much for listening to me, and if you have any questions, please feel free to ask. Sir, मैं राकेश from गुजरात. जी राकेश. I'm excited. जब मैंने आपकी जो पूरी वेबसाइट देखी तो एक्साइटेड था, और मैंने मेरे कलीग्स को भी कहा था कि मुझे तो इतनी ज्यादा पेड़ पौधों में समझ नहीं है,
फिर भी जिनको समझ थी उनको भी मैंने जोड़ा है। और सवाल यही है कि हमें जगह कितनी चाहिए, आपने उसमें तो मेंशन किया ही है जी कि जी इतनी जी छोटी जगह में भी हो सकता है। और क्योंकि आपने जो ताजमहल वाली बागबानी दिखाई, जी। तो ऐसा कुछ थोड़े से एरिया में लॉन वगैरह करके ऐसी बागबानी कर दी है अभी हाँ तो हाँ। अब हम उसमें क्या कर सकते हैं और जगह कितनी चाहिए, मतलब जगह तो आपको बहुत कम जगह में भी काम चल सकता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जिस घर में अभी मैं बैठा हूँ वहां पर उस जगह पे इंटरनेट नहीं आता, नहीं तो मैं आपको एक लाइव छोटा सा फॉरेस्ट इस थोड़ी देर बाद कोशिश करूंगा अगर मैं दिखा पाया तो। 12 वर्ग मीटर मतलब 120 स्क्वायर फीट में भी मैंने एक जंगल लगा रखा है। आप ए फॉरेस्ट की अगर यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आप एक वीडियो देखिएगा, उसका नाम होगा माइक्रो फॉरेस्ट मेकिंग आर ऑफिस फॉरेस्ट, कुछ इस तरह का होगा उसका नाम। 10-12 ही वीडियो है हमारे, आप चाहे तो सारे देख लीजिएगा। तो उस वीडियो में हमने पूरा वो प्रोसेस दिखाया है, कैसे एक बहुत छोटी सी जगह को आप हाथ से खोद कर एक ऐसा जंगल लगा सकते हैं कि आप अगर देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सच के जंगल में हैं, पर वो मतलब खुद अपने हाथ से लगाया हुआ जंगल ही होगा। तो डॉक्टर अकीरा मियावाकी तो जापान से आए हैं। जापान में जगह वैसे ही नहीं है। ही लिव्स इन टोक्यो, सो टोक्यो हैज वेरी स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड अवेलेबल। नेचुरल लार्ज पैचेस ऑफ लैंड आर नोवेयर टू बी सीन। तो उन्होंने वो छोटी छोटी जगहों पे 5 वर्ग मीटर 3 वर्ग मीटर इसमें भी छोटे छोटे जंगल लगा दिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम के जंगल हैं, वो जंगल की तरह ही काम करते हैं। मतलब उसमें आप चलकर जा भी नहीं सकते, वो इतने घने हैं। उसमें मेंढक भी हैं, चिड़ियाएं भी हैं, तितलियां भी हैं, सारी चीजें। तो आप जगह की चिंता ना करें, कितना भी छोटा हो, अगर वो इतना घना है उसमें चल के जा भी नहीं सकते तो समझ लीजिए कि वो जंगल है। या थैंक यू। वेलकम। राकेश, मैं गोपाल गुजरात से। आपने गुलमोहर के बारे में बात की थी कि गलती से लगा दिया जी, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स चाहिए हमें। काफी सारी ऐसी प्रजातियां हैं हमारे देश में जिन्हें हम देसी समझते हैं, जैसे कि गुजरात में पता नहीं क्या बोलते हैं, हिंदी में अमरूद जिसे बोलते हैं, ग्वावा, अनार, और गुजरात में अनार भी बहुत लगता है। आप लगाइए, खाने के लिए लगाइए, फल खाने के लिए। जंगल में नहीं लगा सकते, ये जंगली पौधे नहीं है। हम लोगों ने गिर में एक सर्वे करवाया था। जितनी प्रजातियां तो निकल के गुजरात वाले आई, जितनी प्रजातियां निकल के आई गिर के सर्वे के बाद, उसमें से 5 प्रजातियां भी गुजरात की किसी नर्सरी में नहीं मिलेंगी। सिर्फ बड़ौदा में एक नर्सरी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, उसमें एक हंसा मैम करके एक डीएफओ थी, उन्होंने एक इकलौती एक नर्सरी बनाई थी जिसमें गुजरात की देसी प्रजातियां मिल रही थी। नहीं तो गुजरात में ड्रैगन फ्रूट भी उग रहा है, स्ट्रॉबेरी भी उग रही है, पर जो देसी गुजराती प्रजातियां हैं वो नहीं उग रही हैं। तो आप गिर के जंगल के पेड़ों की एक पुस्तक भी है, गुजराती में ही है, वो आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। वहां पे अगर आप देखें तो आपको वो गिर के आसपास के इलाके का जो गुजरात है उसकी देसी प्रजातियों के बारे में काफी पता चलेगा। और गुलमोहर भी उसी सूची में है जो नहीं लगाना चाहिए। बाकी आप देखेंगे कि बावड़िया जिसको बोलते हैं गुजरात में, कोस्टल एरिया में उगती है, प्रोसोप्रिस जूलीफ्लोरा, वो अभी मैनग्रूव्स तक में घुस गई है। हमने मीठापुर में एक जंगल लगाया था द्वारका के पास, टाटा केमिकल्स के लिए, वहां सब जगह वो बावड़िया, वो विलायती कीकर उगा पड़ा है। उसको हटा के फिर जंगल लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, पर वो काम हुआ, वो जंगल लगा। तो ये काफी बड़ा चैलेंज है, जो चाहे गुजरात में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, कहीं पे भी हो, अपने इलाके के जंगली पेड़ों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, तब हम अच्छा जंगल लगा पाएंगे। तो चाहे आप एक पेड़ भी लगा रहे हो, आप उस सूची में से लगाइए जो वहां के इलाके के जंगल में पाई जाती हैं। That's the key. Yes, that's the key. शुभेंदु सर। जी जी प्लीज। मैं उत्तराखंड से हूँ, रमेश बड़ोनी। नमस्कार। और थैंक यू आपको सुन के कि आपने उत्तराखंड में भी कुछ फॉरेस्ट लगाए हैं। तो सर मैं जानना चाह रहा था, हमने अपने स्कूल के पास कुछ बांज के पेड़ लगाए। बांज आपने सुना होगा? हाँ जी, हाँ जी। धनोल्टी मसूरी के आसपास ये होते हैं और उसी के लगभग ऊंचाई में मेरा भी स्कूल है।
अच्छा, तो हमने 160 के आसपास जो है बांज के पेड़ वहाँ पे लगाए थे, बहुत क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड होता था तो बहुत जी। जल्दी वहाँ मिट्टी विट्टी कट के बह जाती थी। जी, तो जी, हमने स्कूल के बच्चों के साथ मिलके एक सोचा कि एक प्रोजेक्ट इस पे करते हैं, और जी। हमारे यहाँ बेसिकली बहुत ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से तो नहीं, लेकिन क्योंकि बच्चों के साथ हमने जस्ट ये सोच के किया था कि कुछ वाटर रिजर्वायर को भी हम कुछ रिचार्ज कर पाएं, तो इसलिए भी हम इस काम को कर रहे थे। तो अभी हमारे पास लगभग 24 पेड़ तो बच गए हैं, और उस हाइट पे कोई भी बांज का पेड़ नहीं था। हाँ, लगभग हमने मतलब 800 मीटर नीचे उसको लगाया है, जी, और काफी पेड़ हमारे मतलब सरवाइव कर गए। मैं इसलिए काफी बोल रहा हूँ कि उसके आसपास और इस तरह के कोई पेड़ नहीं है। जी, जी, अभी हमारा जो इशू है, वो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सर उनके नीचे ना कोई कीड़ा वीड़ा कुछ आ जाता है, और वो कुछ पेड़ जो है नीचे से कमजोर हो रहे हैं। अच्छा, अच्छा। तो मतलब मैं खास करके आपसे इस सवाल को इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि क्या हम मतलब ये मसूरी के लगभग 800 मीटर नीचे कुछ ऐसा वहाँ का मिट्टी लाके या वहाँ से कुछ क्या कर सकते हैं कि हम उन पेड़ों को बचा लें? मतलब कोई जी, जी, क्या जी। कर सकते हैं कि वो बच जाए और हमारा जो है बांज का पेड़ उस एरिया में अच्छे से हो जाए, क्योंकि वहाँ वाटर जैसी कोई प्रॉब्लम भी ना हो फिर आगे। जी, जी। तो सर बांज पाया जाता है वैसे उस इलाके में, या फिर ऐसा तो नहीं? नहीं, बांज उसके लगभग 800 मतलब 800 मीटर ऊपर है। ऊपर है। हाँ, और हम उसके नीचे लगा रहे, तो वहाँ बांज के पेड़ पहले रहे होंगे कभी, जो आप कह रहे थे कि कभी एक जमाने में जी, देहरादून जी, तक बांज था। अच्छा, था ना, बस ठीक है देहरादून फिर तो। राजपुर तक बांज था, लेकिन फर्क इतना है कि जो यहाँ पर जो बांज के एक दो पेड़ है सर, उनकी पत्तियां बहुत सॉफ्ट हो गई हैं, जी, जी, जी। और जो ऊपर है मतलब वो बड़ी हार्ड है। तो मतलब इतना फर्क है उनके नेचर में, ये काफी मतलब डेलिकेट लगते हैं जो हमने नीचे की ओर लगाए हैं, और हाँ जी, ऊपर हाँ जो जी, है वो काफी मजबूत है, रोबोस्ट है, लेकिन यहाँ नहीं हो रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या मतलब हम करें कि ज्यादा भी लगे और इनमें वो जान रहे मैं कि समझ गया, मैं समझ गया ये। तो इसमें हमें क्या करना है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है कि हम सिर्फ बांझ ना लगाएं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं उत्तराखंड का ही उदाहरण देता हूँ आपको, पहाड़ का। आपको शायद मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो ये सतकोल नाम का गांव है जहाँ पे हम ये देख रहे हैं। ये कौन सा पेड़ है? ये बांज परिवार का। और तो ये जो खरसू है ये भी बांज परिवार का है। ये वाला ही। हाँ, हाँ। मतलब तो ये खरसू और ये मेल जो है ये साथ में हो सकते हैं ना? तो जब हम कोई भी जंगल देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसमें सिर्फ एक प्रकार का पौधा, एक प्रकार का पेड़ नहीं है। जैसे हमने यहाँ देखा, यहाँ खरसू लगा हुआ था, अब वो भी बांज परिवार का है, तो लगा हुआ था। तो इसको हम गिल्ड कहते हैं कई बार, कि ये जो मिक्स है, मतलब होता क्या है, जंगल में पौधे एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। जो मतलब एक काफी नई रिसर्च है, और एक किताब है उसका नाम है द हिडन लाइफ ऑफ ट्रीज, पीटर वॉलबेन करके जर्मन फॉरेस्टर हैं उनकी। उन्होंने ये चीज समझाई है कि पेड़ हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो अकेले उगना चाहती हैं, ये मध्य प्रदेश का एक उदाहरण दिखा रहा हूँ। कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो हमेशा ग्रुप में उगती हैं। और ये भेड़ा ये के साथ में राइट में कौन सा है? हमने कुछ पेड़ तो लगाए, जैसे ओक के डिफरेंट फैमिली के भी हमने लगाए हैं, वो कुछ तो सरवाइव कर गए। बांज के साथ इशू हो रहा है हमारा। हाँ जी, तो कई बार क्या होता है, जब हम सिर्फ एक प्रजाति को लगा देते हैं तो कीड़ा इससे दूसरे पेड़ पे, मतलब अगर मान लीजिए कीड़े का वो आहार है, कीड़ा उसके पत्ते खा सकता है, कीड़ा उसकी छाल खा सकता है, तो फिर वो पूरे आपके प्लांटेशन पे फैलता चला जाएगा। पर अगर एक मिक्स्ड तरीके से जंगल लगा हुआ है, तो जैसे आप नीम और आम मान लीजिए साथ में लगा हुआ है, तो आम पे कीड़ा आ रहा है पर नीम पे नहीं जा सकता, और नीम
उससे जो पदार्थ निकलते हैं वो कीड़े के लिए हानिकारक है। तो कीड़ा आएगा तो थोड़ा बहुत लगेगा, पर वो मतलब उत्पात नहीं मचा सकता, वो इतना ज्यादा नहीं हो सकता कि वो जंगल, वो उन पेड़ों को ही खत्म कर दे। तो आपको तरीका ये रखना चाहिए कि अगर उस इलाके में, उस एल्टीट्यूड पर आपको कोई दूसरा जंगल या कोई भी छोटा इलाका आपको ऐसा मिल जाता है जिसमें पेड़ लगे हुए हैं, और जो बांझ के आपने लगाए उसके अलावा और प्रजातियां लगी हुई हैं, उनकी एक सूची बना लें और उन सबको फिर मिला जुला के लगाएं। तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी मिट्टी भी जकड़ी रहेगी क्योंकि ज्यादा जड़ें होंगी तो वो ज्यादा अच्छे से जाल बनाएंगे, और अगर कीड़ा किसी एक पेड़ पे लगेगा भी तो वो फैल नहीं पाएगा, पूरी तरीके से नहीं फैल पाएगा। अब कीड़ा क्या है, कीड़ा भी तो एक पॉलिनेटर ही है। तो कई बार हमको ये कीड़े चाहिए होते हैं, जैसे हम सारी अगर मधुमक्खियों को खत्म कर दें तो हो सकता है अपने को खाने को सरसों ही ना मिले या धान ही ना मिले। बिल्कुल। तो कीड़ा भी है तो जंगल का ही पार्ट, पर क्या है, अभी वो डोमिनेट कर पा रहा है, अभी वो पेड़ पौधों को खत्म करने की शक्ति रखता है क्योंकि उसको रोकने के लिए अभी कुछ नहीं लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो आपका बांझ लगा हुआ है उसको लगा रहने दें, और बीच में जो इलाके बचे होंगे ना उनमें और पेड़ों के भी पौधे ला के डालना शुरू कर दीजिए। तो वो चीज कामयाब होनी चाहिए, और मिट्टी हमेशा ढकी रहे, मिट्टी पर आप पराली बिछा के रखें। वो थोड़ा इशू है सर, बाकी तो हमारे यहाँ मतलब जगह तो बहुत है, हमारे पास जगह की हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमारे पास सिर्फ यही है, उसको बचाने की जो है वो थोड़ा सा हमें टेक्निक्स चाहिए बस। जी जी जी, मिट्टी हमेशा ढकी रहे। आलाप करके एक संस्था है, नैनीताल जिले में आती है, हम लोग उनके साथ काफी काम करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं जंगल लगाने की। तो आपके यहाँ के अगर कोई बच्चे ट्रेनिंग लेना चाहेंगे तो आलाप में, और आप भी खुद कभी ट्रेनिंग लेना चाहें, alap.in उनकी वेबसाइट है, अगर आप सर्च करें तो आपको मिल जाएंगे। हाँ जी। तो आप देखते रहिएगा, वो निशुल्क ही होती है पूरी ट्रेनिंग भी, या होती है तो बहुत सस्ते में होती है, कोई ऐसी बड़ी फीस नहीं है। तो वो चीज आपके बड़े काम आएगी, आप क्योंकि पहले से ही लगा रहे हैं। करना है और आपके साथ मिलके करना है। हम हमारे कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे प्रॉब्लम है पानी की और जंगल भी कम हुए हैं, तो हमको करना है। हमारा एक बड़ा मिशन भी है। That's good. बदौनी जी, फिर आगे बढ़ते हैं। बदौनी जी आगे बढ़ते हैं। Sure sir. We'll share his number. You can talk to him later also. Okay. Thank you, Shubhendu. Let's move forward. Okay sir. Thank you. हाँ जी, और कोई सवाल किसी के? जी, जी मैं संत कुमार साहनी बिहार से हूँ। बिहार में आपकी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है कि? और दूसरी बात ये कि बिहार में नदियों के बांध पर पेड़ लगाए गए हैं और वो पेड़ थोड़े से विरल हैं, उसको सघन बनाया जा सकता है क्या ये फॉरेस्ट्री ये पेड़ों से, प्लांट से? नदियों के बांध पे जो पेड़ लगे हैं उसमें क्या क्या परेशानी क्या थी, आप बता रहे थे? उसमें नीम वगैरह का भी है, वैसे पेड़ हैं जो दूर दूर लगे हुए हैं, जैसे नीम का, नीम का, इन सारी चीजों का पेड़ लगा हुआ। उन्हें घना किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। जीव अमृत के इस्तेमाल से आप मिट्टी को मुलायम कर सकते हैं। जैसे मैं तो आपको दिखा रहा था कि वो हम मशीन से, जेसीबी से उसको मिट्टी को खोद के उसमें सारी चीजें मिला रहे हैं, वो एक तरीका है, पर वो उन इलाकों के लिए ज्यादा कारगर है जहां पे पहले से कुछ नहीं है। उन इलाकों में जहां पे पहले से ही पेड़ मौजूद हैं, आप बीच की ये जो जगह है इसको थोड़ा बहुत खोद के 20-30 सेंटीमीटर उस पर जीवामृत का छिड़काव करें, उसे पराल से ढक के रख दें, और आप देखेंगे 2.5-3 महीने में वो मिट्टी इतनी अच्छी हो जाएगी कि उसमें आप जो भी लगा दें वो उगना शुरू हो जाएगा। पर लगाएं आप देसी पेड़ ही, क्योंकि जब देसी पेड़ लगेंगे तो फिर उन्हें किसी भी प्रकार के रख रखाव की जरूरत नहीं होगी और देसी पशु पक्षी फिर वापस आना शुरू हो जाएंगे। जी, एक सवाल और है, क्या छतों पर ये पेड़ लगाए जा सकते हैं? फॉरेस्ट जैसा दिख सकता है, जैसे आपने बताया कि 3 वर्ग मीटर। इसका ये काम हमने खुद से तो कभी नहीं किया, पर
मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने जंगल की तरह ही बहुत ज्यादा घनत्व में पेड़ लगाए हैं छतों पर। किसी ने ड्रम लगा दिए बहुत सारे और ड्रमों के अंदर लगा दिए, किसी ने छत पे मिट्टी का भरान करके उस पे लगा दिए, पर हमने खुद से कभी नहीं किया। तो मैं अपने अनुभव से कुछ नहीं बता पाऊंगा आपको, बस सुनी सुनाई बात बता पाऊंगा। थैंक यू सर। वेलकम। I have a question, sir. जी I'm please. Asha. I'm from Hyderabad. Yes, please. मुझे ये पूछना था कि जैसे आप शहर में कोई जगह चुनते हो जी तो किस तरह की सर्वे होती है? कुछ तो होती होगी, सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में या वहाँ के वाटर फैसिलिटी के बारे में। जी, ऐसे जी, ही जी। कोई जगह नहीं चुन जी, सकते जी, ना जी, हम फॉरेस्ट के लिए। तो so what kind of preparatory activity you do? Yeah. So we call it site readiness, and we have something called site readiness check sheet, and I'll show you some few things which we need to check before we decide to make a forest on any given patch of land. So if you see my screen, so first is the site should have sunlight. In India, at least minimum 7 to 8 hours of sunlight. The site should be clear from any debris. Watering arrangement should be there even before we plant the forest. So it should not be like after we plant the forest, the watering arrangement has to be done. It has to be done before we plant the forest. And it has to be like foolproof arrangement. Should not be a temporary system. We have to have a very fixed permanent system. Then we have to have biomass unloading and mixing area, like some extra space should be there. Some space should be there where we can unload our seedlings, keep them for a few days. There should be watering arrangement for our seedlings also available in that area. And the site should be fenced. It should be protected so that, you know, cattle or stray animals cannot enter the site. And there should be maintenance staff, people who would take care of the forest eventually after the plantation. Then we have to also see that there are no overhead wires going through the site. Under the site, there should not be any pipeline or wires going. So, but basic stuff: fencing, protection, watering, these two things, and sunlight. Because, you know, these three things, plants want moisture and sunlight to grow. So those are essential, and protection from people, that is essential. Thank you. Welcome. Shubhendu ji, even I have a question. First of all, many thanks to you for this very interesting and informative session. Pleasure. And thank you, Bhaskar sir, for thinking of such a great topic for this session. You know, this is something which is very close to, I think, each and every heart. When it comes to nature, I think more or less we love nature. And when it comes to me, I'm a very big lover of nature, you know. But I belong to such a city. I come from Delhi. So a scarcity of land is a very big question mark. I always feel people, they are highly fortunate if they have surrounded areas, green, if they have grounds, if they have parks. So we are in a metro city. So, and at the same time, a big love for nature. So how can we, what is the provision for people like us? हम क्या कर सकते हैं और कैसे contribute कर सकते हैं? और क्या और हमारे पास प्रोविजंस हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के? तो अरोरा मैम, योर क्वेश्चन इज वेरी रेलेवेंट कि हाँ, सिटीज में जगह की तो कमी है, पर साथ में जो बड़े शहर हैं दिल्ली जैसे, उसमें जगह है भी, क्योंकि इनका साइज इतना बड़ा है। ऐसा नहीं है कि मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं हो सकता है वहां पे जगह की कमी हो, पर as a city, Delhi has a lot of land. Let me show you this small presentation of one project. So we made a forest for CAG of India, and looking at that project, then we got some other work also. So I'm showing you this forest. See, this is in Delhi. This is close to ITU, the forest which I was talking about. And now we are expanding this project in form of forestscape. तो हम यहाँ पर बहुत कुछ कर रहे हैं, इसमें फॉरेस्ट ट्रेल्स बना रहे हैं, बैठने की जगहें, स्कल्पचर्स,
all this is happening in 1 hectare of area, which is, you can imagine, it is not even 5 kilometers from Rashtrapati Bhavan. So it is in very much central Delhi, on the banks of Yamuna. We are creating a space where people can come and work from the forest. They can sit and have meetings in the forest, और मेडिटेट कर सकते हैं जंगल के बीच में. स्कल्पचर्स इसमें हम लगा रहे हैं. और मैं आपको थोड़ा सा अभी जिस स्टेज में ये प्रोजेक्ट है उसकी भी फोटोज दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि दिल्ली के अंदर, मुझे भी नहीं पता था कि इतनी सारी जगह हमारे पास है. You see, this is the land between 2 flyovers. So this is the place once, I mean, this forest is right now in the making. We have already planted sculpture, already made sculptures, installed them, and all this open land that you see, brown color, that's where we are going to plant the forest, and rest, all the area is with DDA, Delhi Development Authority. So it is up to the people of Delhi to demand for projects like these, and we can create, like Bombay has Sanjay Gandhi National Park, we can create a national park like forest in city of Delhi. Right now 1 hectare is what we are focusing on, पर scope तो बहुत है. So Shubhendu ji, I was coming to this point only. When it comes to getting permissions, Bhaskar sir would agree with me. It takes years and years. You know, I live in Shalimar Bagh, which is in north part of the city, and here there is a monument, Hawa Mahal, जो कि काफी लोगों को पता ही नहीं था, सालों तक पता नहीं था. कि दिल्ली में मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मैं भी यहाँ पर अब it's been 27 years शालीमार पार्क, लेकिन मुझे भी 10 या 12 साल पहले ही मालूम पड़ा कि इस पार्क के अंदर जाकर एक मॉन्यूमेंट है पुराना, हवा महल बोलते हैं, शीश महल, शीश महल. और शीश महल वो जगह है जहाँ की मुगल राजा औरंगजेब की ताजपोशी हुई थी. वो उसके आसपास सारे गार्डन्स होते थे, और वहां से एक टनल निकलती है जो कि सीधी कनेक्ट होती है बाईपास पे. वो इसलिए होता था कि अगर कोई अटैक हुआ तो उस टनल से वो नीचे निकल के पार जो आपकी ग्रैंड टैंक रोड है उस पे पहुंच जाते थे. जब मुझे इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता चला, मैंने वहाँ रेगुलर विजिट्स करना शुरू किया, अपने बच्चों के साथ भी विजिट कराया. उसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा बहुत वहाँ पे जो अपॉइंटेड मालीज थे, बिकॉज दिस कम्स अंडर इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट. सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन टू दैट. देन आई started writing to archaeological survey department that please guide me or please help me to get the maintenance of this monument done, because we were all set. I wanted कि हमारे पास अपने बच्चों का पूल है. हमने वहाँ जाके कई बार प्लांटेशन की, हमने कई बार वहाँ जाकर पोस्टर मेकिंग कंपटीशन और आपकी पोम राइटिंग कॉम्पिटिशन्स वहाँ जाके बच्चों के साथ कराए. आइडिया था कि बच्चों को मॉन्यूमेंट से भी कनेक्ट किया जाए, हेरिटेज से भी, और कुछ बच्चों को उसके रख रखाव में एंगेज किया जाए. लेकिन 1.5 साल तक मैं कंटिन्यूसली लिखती रही कि आप मुझे थोड़ा सा अथॉरिटी दे दीजिए, या आप ही गाइड कर दीजिए, हमें कौन सा उसको अपनी जागीर बनाना है, हमको तो उसको मेंटेन करने का राइट दे दीजिए, कि हम उसको एक ब्यूटीफाई कर दें उस प्लेस को बच्चों के उससे. और यहीं पर आसपास के लोग, इतने लोग रहते हैं, किसी को पता नहीं. मैंने अपने तरफ से उसके बारे में अवेयरनेस भी क्रिएट करनी शुरू कर दी. लोगों ने वहाँ थोड़ा थोड़ा विजिट करना भी शुरू कर दिया. तो व्हेन इट कम्स टू डिपार्टमेंट्स ना, इट्स रियली वेरी टफ टू गेट परमिशंस. और तब तक आपका अपना पैशन, आपका अपना जो एंथो होता है ना काम करने का, वो पता चलता है सप्रेस होते ऑलमोस्ट जा रहा है. तो कुछ ऐसा मुझे बताइए जो मेरे अपने हाथ में हो, और जिसको मैं कल ही चाहूँ तो कल से शुरू करके अपना काम शुरू कर दूं. कुछ ऐसा है आपके माइंड में शायद, क्योंकि आप यू आर एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम लास्ट मोर देन 10 years and you must have come across with many ways to implement the project. Ma'am, I think the easier and the fastest way is to get something done really small, okay, but by yourself. I don't know if you collect the money from because asking somebody else to make a decision is difficult. However, once you show and tell what worked in our case, like in this presentation I was showing you, the first forest I made was in backyard of my own house. If I would not have done that project, which was totally in my control, in backyard of my own house, I would not have made a forest in US or Delhi in heart of the city.
So I think doing that one project which is under your control, maybe it could be in your school also. Try to find that. Again, it's a metro city. Total land area is 2 acres. Out of 2 acres, 1.25 goes. यहाँ लगा दीजिए आप. If you want to do a practical and show that you can make a forest with your children, with your students, these are the places like ITO place. This is where you can mention it. You can try as a pioneer among all us, awardee fraternity. You can try on the rooftop of your school. You don't have land. Rooftop. Right? And there are beautiful videos available on internet. We can share in this group also. You can try on the rooftop, ma'am, or even in the edges of the school, all along the boundary wall. That also can be tried. Okay, so this can be definitely tried, ma'am. Whatever little land available, then we will move forward. Thank you very much, Bhaskar sir. My school is already full of green area. You know, I said I'm a big lover, so my school is full of plants and trees, variety of trees. पर वहाँ पर forest लाने का मतलब है, जैसा शुभेंदु जी ने कहा, बड़ी सारी प्रजातियां भी आ जाएंगी, उनको कौन संभालेगा सर? Plant the trees, ma'am, they will come. The birds, the squirrels, the butterflies, they will come. Birds are coming, sir. Thank you very much. Okay, ji. Hello, sir. Hello, Subhendu sir. Good afternoon. I am Gautam Dev Sharma from Assam. So I am very much thankful to you for your kind information regarding this kind of your forest. But one thing, sir, I have a very simple question. In these days of COVID, in different parts of India, even in Assam, oxygen plants are being established, no? So if this way, everywhere in the country, even on this earth, oxygen plants are being established, I think someday after some years, 5 years, 10 years, there will be the percentage of oxygen in atmosphere will definitely fall down. So my question is, how much oxygen, that means the amount of oxygen that this kind of forest, it will depend upon the species actually, can be produced at the maximum, depending upon your square feet of area. Any estimations, sir, like that? Sir, the problem is nowadays everybody is obsessed about carbon dioxide, CO2 sequestration. So not we, but one of our clients did a study and they declared 30.8 tons of CO2 sequestered per year by 1 acre of forest planted in this methodology. So if 30 tons of CO2 is being absorbed, you can put it in that equation, chemical equation, and also calculate how much of oxygen was generated. But now that you have asked this question, it's quite eye-opening that right now the entire world is so focused on CO2 sequestration that nobody is even thinking about how much oxygen was generated, though it would have taken 5 minutes for them to calculate. Yeah. So thank you for the question. Thank you, sir. Thank you. हाँ, शुभेंदु जी, मेरा भी एक प्रश्न है जी इमरान जी, बहुत ही बढ़िया, आपका बहुत ही अच्छा सेशन रहा। आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि आपने कई बार जीवामृत का जिक्र किया है, तो मैं ये जानना चाहूंगा जीवामृत क्या है और क्या इसको घर पर बनाया जा सकता है? जी, यदि बनाया जा सकता है तो कैसे बनाया जा सकता है? आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ जी सर, जीव अमृत जो है वो, जैसा कि नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी भी हमारी छोटे जीव जंतु हैं, इनके लिए तरह से एक अमृत का ही काम करता है वो, क्योंकि जीव अमृत एक ऐसी कंपोस्ट टी है। इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। जीव अमृत में बहुत तरीके के छोटे जीव जंतु हैं जो कि पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए सहारा देते हैं। अब ये जीव जंतु कहाँ पाए जाते हैं? ये किसी घने जंगल में जो जड़ें होती हैं उनके आसपास पाए जाते हैं। तो हम जीवामृत बनाएंगे कैसे? थोड़ी सी आप मिट्टी ले लीजिए किसी घने जंगल की जड़ में से,
जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, और ये चीज आपने जरूर देखी होगी, जब किसी गाय का गोबर जमीन पर गिरा होता है, सूख जाता है, जब आप उसे हटाते हैं उसके नीचे आपको छेद दिखाई देते हैं। ऐसा हमेशा होता है। आप कभी भी, आप हम में से कई सारों ने ये चीज देखी होगी, गाय का सूखा हुआ गोबर पड़ा है, आपने हटाया, उसके नीचे छेद है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो केचुए हैं जमीन में रहने वाले, वो इस गोबर की तरफ आकर्षित होते हैं। सतह पे रहने वाले जो कीट है वो इस गोबर की तरफ आकर्षित होते हैं। So dung of herbivorous animals activates the earthworms under the surface and beetles on the surface. So we have to collect microbes which are available in the dung of herbivorous animal. जो गोबर के अंदर सूक्ष्म जीव जंतु हैं उनको इकट्ठा करना है, जो पेड़ों की जड़ों पे जीव जंतु मिलते हैं हमें उन्हें इकट्ठा करना है, और उन सबको इकट्ठा करके हमें एक इस तरह का सॉल्यूशन बनाना है, एक इस तरह का पदार्थ बनाना है जिससे कि हम मिट्टी में पाए जाने वाली जो ये सारी सूक्ष्म जीव जंतु हैं इनको वापस लेके आ सके। अब ये बनाना कैसे है, इसका तरीका हम लोगों ने अपने इसमें YouTube चैनल पर डाल रखा है। तो आप अगर मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, इसे देख लीजिएगा। So you can go to our YouTube channel and watch this video about how to make Jivamrit. The video is in English, but it is all the quantities are given. शायद हिंदी में भी लिखा होगा, हाँ। So you can just watch. जो डली है वो तो हिंदी में है ना? है जी। जो भी मटेरियल इसमें डाला है वो तो हिंदी में ही है। हाँ हाँ, लाइक गोबर। तो हाँ जी, तो ये आप वीडियो देख के उसमें पूरी प्रणाली दिखाई है। आप जीवामृत खुद से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और खेती में भी इसका इस्तेमाल होता है। हमने जिनसे सीखा है, सुभाष पालेकर जी से, वो खेती में इस्तेमाल करते हैं, हम जंगल लगाने में इस्तेमाल करते हैं। So it's also used in farming, something called zero budget spiritual farming or zero budget natural farming by Mr. Subhash Palekar. So we have learned from him and we are using it in forestry, but you can also use it in farming. Okay. Any other question? But Subhendu sir, I want to add one thing. Hello sir. जी जी, आ रही है आपकी। I can hear you. Season, no sir, in Assam, what I have seen, some of the tribal people residing nearby the forest areas, because there are so many forest areas are there, they unknowingly वो क्या करते हैं, जंगल में आग लगा देते हैं। So जितना सूखा पत्ता जो ड्राई लीव्स होता है वो सब ड्राई आउट हो, बर्न आउट हो जाता है। I think the microorganism which are there in soil for your decomposition and your recycling of this your food materials, no, they are damaged. So if any kind of soil which will be collected for such kind of your jungle production, no, or plantation, if these are not collected during spring season where forest fire has taken place, perhaps it will be better, I think, and you will be knowing it better. Actually, it is my feelings, actually practical feelings. I don't know so much about this kind of thing. Yeah, so every season has some or the other tree seeding. So throughout the year, you have to continue this activity because trees bloom in different seasons. Right. Achha, I have some other commitment also at 4:30, so I might have to take your leave soon because I want to take a small break also before I move to my next meeting. Thank you, sir. Welcome. That was a great session. Shubhendu, you really inspired our teachers who themselves were inspirational beings. Now I see lots of microforests coming up all over the country, right from Ladakh to Kanyakumari to Panchmahal Hills to Latur to everywhere, all over the country. I'm visualizing, I'm seeing lots of microforests and even bigger forests coming up, thanks to you and Dr. Miyawaki. I request Aruja to please present word of thanks. Aruja or Juhi? Yes, sir. Yes, sir.
Actually, thank you so much for this very, very enlightening session. And empowered with the knowledge that you have shared with us, may we all grow forests in our backyards, in our schools and villages. And given the current climate crisis, your organization's journey, sir, to plant and rewild the planet, it is truly path-breaking and inspirational. So with that in mind, we have heartfelt gratitude for you and the way you're creating more forests, as well as sharing this knowledge with us. So thank you so much, sir, for showing us a way in which we can do our part. Thank you. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you, Shubhendu. Thank you. One second, before we adieu, I'd like to just request your appointment. I'll talk to you later. I'll take your number from my team. We have, and I live in Delhi. We live in the Delhi cantonment, which is very close to the Terminal 1. As you come out of Terminal 1, which is known these days, there's a small island of MPs is available. We've been dreaming of creating a Miyawaki forest there. Last year we made a small attempt, a very very novice kind of an attempt. We've planted so many trees there, but it is not really close to what it can be. So I'll get in touch with you. We have about 3 acres of land here, and it is beautiful. We can create a real micro forest out here. So I'll come to you subsequently, and we will create a beautiful forest here with your help. And I request all our esteemed August teachers, please pledge for yourself. You don't have to pledge to anybody. You pledge for yourself, take a pledge that you will develop a micro Miyawaki forest anywhere, in your school, in your home, on the rooftop of your home, or in the rooftop of the school, wherever it is possible, and it is possible everywhere. Okay, so may I pray, may I request all of you that you will give a commitment to yourself that you will take good care of the earth. Be a healer to yourself and to the world and to the earth. Thank you so much, Shubhendu. Thank you so much for taking out time and spending giving valuable information to our teachers. Thank you so much, Shubhendu. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you. Namaskar. Happy Buddha Purnima to all. Happy Buddha. Thank you. And thank you to you, sir, as well, for initiating. Pleasure, ma'am. Pleasure. Thank you. Thank you, Bhaskar sir, very much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, Bhaskar sir. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Sir Bhaskar. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. It was very interesting. Thank you very much, Bhaskar sir.